Hello students, in this lecture we will discuss about the insertion and deletion in the AVL tree. Through insertion we create the AVL tree, and after creation, if required, we delete some keys with the help of the deletion principles. Let us take an example. We have to construct an AVL tree with the following keys. So first of all we have to insert 56, insert it just like the binary search tree. But here we have to also write the balance factor of the node. Since it is the single node, so its balance factor is 0 because its left height is 1 and its right height is also 1. So 1 minus 1 is equal to 0. Now insert the next key 48. When 48 is inserted, 48 will go and attached as a left child of node 56 because 48 is less than the 56. When 48 is inserted, then the balance factor of 48 is always 0 because the new key is always attached as a leaf node, and the balance factor of leaf node is 1 minus 1, 0. But the balance factor of 56, which is previously 0, is now changed to plus 1 because now the left height is 1, 2, 2 and the right height is 1. So 2 minus 1 is equal to plus 1. Now next insert 39. 39 is less than 56 and also less than 48. So it will be inserted to the left of the 48 as a left child of 48. When 39 is inserted, then the balance factor of 48, which is previously 0, is now changed to 1. And the balance factor of 56, which was previously plus 1, is now plus 2. Because 1 minus 1, 0, 2 minus 1 plus 1, and the balance factor of this node is 1, 2, 3, left height 3, right height is 1. So 3 minus 1 is plus 2. These two balance factors are okay because they are within the limit minus 1 to plus 1. But the balance factor of node 56 is out of the limit. Its balance factor is plus 2, which is not allowed. So we have to take some measures so that we can rebalance this unbalanced tree. How we can balance it? Through the rotation. Because due to 56, it is unbalanced and it is a case of LL situation. Therefore, we have required a LL rotation, left of left rotation. And in that case, in left of left rotation, we rotate in the right direction. So 56 is rotated in the right direction. There is a right rotation and 56 will become the right child of node 48. ये नीचे आएगा और इसका right child बन जाएगा. अब ये रोटेशन के बाद अगर आप बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं तो 39 का बैलेंस फैक्टर 1 minus 1, 0, 56 का भी 1 minus 1, 0 और 48 का 2 minus 2, लेफ्ट हाइट 2, राइट हाइट 2, 2 minus 2, 0 मीन्स ये पूरा बैलेंस हो गया. तो ये अनबैलेंस ट्री से हमने LL रोटेशन परफॉर्म करके इसको बैलेंस ट्री में कन्वर्ट कर दिया. अब हम जब अच्छा यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि किसी भी अनबैलेंस ट्री में नई की अटैच नहीं करेंगे. जब भी नई की अटैच हो और आपको लगे कि कहीं पर किसी नोड का बैलेंस फैक्टर आउट ऑफ द लिमिट है, मींस -1 से कम या +1 से ज्यादा है, तो आप पहले उसमें रोटेशंस, जो भी रोटेशंस रिक्वायर्ड हो उनको परफॉर्म करके उसके बाद ही जब वो बैलेंस हो जाए तभी उसमें नई की इंसर्ट होगी. तो जैसे 39 इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी, तो हमने पहले LL रोटेशन परफॉर्म किया. LL रोटेशन के बाद जब ट्री हमारा बैलेंस हो गया, अब इसमें नई की जो 39 है वो ऐड करेंगे, सॉरी 65 ऐड करेंगे. तो अब 65 जब इसमें ऐड करेंगे तो 65 इज ग्रेटर देन 48 एंड आल्सो ग्रेटर देन 56. तो ये 56 के राइट में अटैच होगा. यहाँ पर अटैच हो गया. जब अटैच हो जाए तो फिर से आपको सारे नोड्स के बैलेंस फैक्टर लिखने हैं. लीफ नोड का बैलेंस फैक्टर 0 ही होता है, चूंकि 1 minus 1 हमेशा 0 ही होगा, तो ये 0 0 हो गया. 56 का बैलेंस फैक्टर हो गया 1 minus 2, तो ये -1 हो गया. 48 का बैलेंस फैक्टर लेफ्ट हाइट 1 and 2, राइट हाइट 1 2 3, तो 2 minus 3 -1.
यहाँ पर किसी भी नोड के बैलेंस फैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल द बैलेंस फैक्टर्स आर विद इन द अलाउड लिमिट, देयरफॉर वी कैन इंसर्ट द न्यू की इन दिस ट्री. So new key is 60. 60 is greater than 48, greater than 56, but less than 65. Therefore, it will be inserted to the left of 65 as a left child. After insertion, again write the balance factor of every node. Because note that every time when you insert a new key or you delete any key, then the chances of balance factor changing is very high. So after insertion of 60, the balance factor of 65 will be 2 minus 1 plus 1. Balance factor of 56 is 1 minus 1, 2, 3, 3 minus 2. And the balance factor of 48 is 2 minus 1, 2, 3, 4. 2 minus 4 means minus 2. तो ये हमने बैलेंस फैक्टर लिख दिए. अब आपको देख के ही लग रहा है कि यहाँ पर 56 और 48 दो नोड ऐसे हैं जिनका बैलेंस फैक्टर अलाउड लिमिट में नहीं है, मीन्स ये अनबैलेंस्ड ही हो गया. तो जब तक हम इसको बैलेंस नहीं कर लेते तब तक इसमें नेक्स्ट की 25 को हम इंसर्ट नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हम. अच्छा, अब इसमें देखना होगा आपको ये कौन सी सिचुएशन है, उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें रोटेशन में परफॉर्म करना होगा. तो आप देखिए, जो आपने न्यू की इंसर्ट की है वो जिस पर अटैच की है वो नोड, जिस नोड पे जैसे यहाँ पर देखिए 48 पे भी -2 आ रहा है, 56 पे भी -2 आ रहा है. तो इसमें आप बॉटम टू टॉप चलिए, जहां पर पहली गड़बड़ हो उसे पकड़िए. जैसे आपने अभी भी रिसेंटली आपने 60 अटैच किया, 60 अटैच हुआ था 65 पर, इसका भी बैलेंस फैक्टर ओके था. फिर 65 जिस पर अटैच है उसका बैलेंस फैक्टर -2 है, जो कि नहीं होना चाहिए. तो आप देखिए कौन सा केस हो गया. 60 इज टुवर्ड्स लेफ्ट which is already towards right of 56. Therefore, it is a case of RL situation, means right left situation. आपने जो की अटैच की है अभी वो गड़बड़ वाले नोड के राइट पर अटैच हुई है, यानी कि ये जिसके लेफ्ट में है वो खुद इसके राइट में है, यानी कि ये RL सिचुएशन हो गई. तो इसमें RL रोटेशन परफॉर्म होगा. RL रोटेशन यहाँ नाम से क्लियर है, पहले राइट रोटेशन होगा फिर लेफ्ट रोटेशन होगा. और आप ये भी जानते हैं कि राइट रोटेशन हमेशा पॉजिटिव पर होता है और लेफ्ट रोटेशन हमेशा नेगेटिव पर होता है. मीन्स 65 पे हमें राइट रोटेशन देना होगा और 56 पर हमें लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करना होगा. और आपने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि अगर हमें जैसे यहाँ पर लेवल 0 पे भी प्रॉब्लम है, लेवल 1 पे भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हमें डीपेस्ट लेवल पर जो प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करना होगा. या जैसे मैंने अभी तरीका बताया, आप बॉटम से चलिए, जो पहली गड़बड़ हो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कि जो रिसेंटली की ऐड हुई थी वो RL केस था या LR केस था यहाँ पर. और एक दूसरा और इजी मेथड भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जहां पर गड़बड़ हो रही है उसका जो चाइल्ड नोड है, इन दोनों को आप जरा सा स्टडी करिए तो आप देखेंगे इसका पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव है बैलेंस फैक्टर, यानी कि साइन डिफरेंट है. तो डिफरेंट साइन माने डबल रोटेशन. जहां पॉजिटिव है वहां राइट रोटेशन, जहां नेगेटिव है वहां लेफ्ट रोटेशन. तो मैंने कई सारे मेथड आपको बता दिए हैं, किसी न किसी तरीके से तो आप आइडेंटिफाई कर ही जाओगे, आपसे गलती नहीं होगी. तो इसमें जो नेक्स्ट हमें करना है, RL रोटेशन परफॉर्म करना है. तो सबसे पहले राइट रोटेशन. तो जब राइट रोटेशन करेंगे तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ से केवल इतने पार्ट पे फोकस करिए जो ब्लैक वाला पार्ट है. तो ये 65 रोटेट होके 60 के राइट में आ जाएगा. ये देखिए जैसे यहाँ दिखाया आपको, जब ये राइट रोटेशन होगा तो जैसे लगेगा यहाँ पर फोर्स लगाया और ये इसके अकॉर्डिंग स्लाइड होके नीचे आ गया, यहाँ पर अटैच हो गया. तो ये 60 के राइट में 65 आ गया. जो भी रोटेशन होगा, अगर लेफ्ट रोटेशन होगा तो ये रोटेट होकर लेफ्ट में आ जाता, ये राइट रोटेशन है तो रोटेट होके राइट में आ जाएगा. तो हमें ये मिला. इसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो इसके ऊपर का स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है. तो एक रोटेशन हमने परफॉर्म कर दिया. अब बात आती है हमें इसमें लेफ्ट रोटेशन और परफॉर्म करना है. और लेफ्ट रोटेशन कहां पर होगा, जहां पर नेगेटिव बैलेंस फैक्टर था -2 पे, यानी कि 56 पर. तो जब इस पे हम लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो ये रोटेट होकर 60 के लेफ्ट में आ जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. इसको पूरे को हमने दिखा दिया. ये पहला केस था, जब आपने राइट रोटेशन किया था तो ये मिला था, और इसमें जब आपने लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म किया तो 56 डाउन होके 60 के लेफ्ट में आ जाएगा. और ये पूरी असेंबली फिर चूंकि 60 यहाँ पर आ गया तो ये तीन नोड जो है ऊपर उठ के शिफ्ट होकर के और 48 के साथ अटैच हो जाएंगे, तो ये मिलेगा. अगर आप केवल इतने पोर्शन पे गौर करें तो आपको इसका ये रिजल्टेंट फिगर समझ में आ रहा होगा.
बस आपको ये पूरा उठा करके 48 पर अटैच कर देना, क्योंकि पहले 56 के साथ ये अटैच था, लेकिन अब 56 चूंकि 60 का लेफ्ट चाइल्ड बन गया है, तो ये पूरी असेंबली 3 नोड की जाके 48 पे अटैच हो जाएगी। जब ये पूरा लेफ्ट राइट और लेफ्ट दोनों रोटेशन परफॉर्म हो गया, यानी आरएल रोटेशन परफॉर्म हो गया, अब आप इनका बैलेंस फैक्टर लिख लीजिए। देखिए इंटरमीडिएट नोड ये जो मिला था हमें, इंटरमीडिएट ट्री, इसका बैलेंस फैक्टर लिखना उतना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इसमें भी चेंजेस होने हैं। जब ट्री फाइनल हो गया, अब इसका बैलेंस फैक्टर आप लिखिए। तो ये आ गया आपका 0, बैलेंस फैक्टर इसका 0, क्योंकि लीफ नोड है, और ये 3 लीफ नोड है इसमें, 65, 56 एंड 39 का 0 हो गया। 60 का बैलेंस फैक्टर आप चेक करिए, 2 - 2 ये भी 0, और 48 का बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 2, लेफ्ट हाइट 2 हो गई, राइट हाइट में 1 2 3 एंड 1 2 3 दोनों 3 है, 3 3 में मैक्सिमम 3, यानी कि 2 - 3 -1। अब आप देखिए सारे के बैलेंस फैक्टर जो पहले प्रॉब्लम हो रही थी -2 -2 आ रहे थे, ऑटोमेटिक ये बैलेंस हो गए, यानी ये हमारा बैलेंस ट्री मिल गया। तो अब जो 60 के अटैचमेंट के बाद जो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उसको हमने सॉल्व कर लिया, और जो ट्री अनबैलेंस्ड हुआ था उसको हमने बैलेंस ट्री में कन्वर्ट कर लिया। नाउ इट इज द टाइम टू अटैच ए न्यू की 25। तो इसमें जो हमारा लास्ट बैलेंस ट्री मिला था, आप एक बार दोबारा देखिए, ये ट्री था, राइट मोस्ट ट्री देखिए आप, ये इसी में अटैच करेंगे हम। तो 25 जब अटैच होगा, 25 इज लेस देन 48 एंड लेस देन 39, तो ये 39 के लेफ्ट में अटैच होगा, यहाँ अटैच हो गया। जैसे ही अटैच होगा, जिस लेफ्ट में या राइट में जहां में अटैच होगा, उधर के बैलेंस फैक्टर चेंजेस आएंगे उसमें। जैसे ये था 0, इसका हो जाएगा 2 - 1 + 1, और इसका हो जाएगा 3 - 3 0। तो बाकी इसमें देखिए 25 के अटैचमेंट के बाद किसी भी बैलेंस फैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मींस ऑल इज वेल। नाउ द नेक्स्ट की इज फॉर 18. 18 is less than 48, less than 39, less than 25. Therefore, it is attached to the left of 25 as a left child. After insertion of 18, the balance factor changes. 25 has a balance factor +1 because 2 - 1 + 1. The balance factor of 39 is 1 2 3 - 1. 3 - 1 means +2. +2 means problem. And other balance factors are not changed, because the balance factor of 48 is 1 2 3 4 minus 1 2 3. 4 - 3 means +1. No problem. यहाँ पर केवल एक गड़बड़ है 39 पर, और ये कौन सा केस है? जो अभी रिसेंटली की ऐड हुई, वो जिस पर अटैच हुई जिसके लेफ्ट में, वो खुद 39 के लेफ्ट में था, मीन्स ये लेफ्ट ऑफ लेफ्ट का केस है, एलएल केस है। और एलएल केस में आपको मालूम है राइट रोटेशन हम परफॉर्म करते थे। आपने लास्ट वीडियो अगर देखा होगा तो आप सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप रोटेशन का वीडियो देखिए, जिसमें मैंने एबल ट्री का बेसिक्स, उसके एप्लीकेशंस और रोटेशंस के बारे में ही बताया है। और वैसे भी मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया है, जिस नोट पे गड़बड़ है उसको, और जिसका उसके चाइल्ड नोट को, इनको दो को आप इन्हीं को देखिए, दोनों के साइन सेम है। सेम माने सिंगल रोटेशन, और पॉजिटिव बताता है कि राइट रोटेशन होगा। यहाँ से भी आपको हिंट मिल रहा है। या आपने एलएल रोटेशन जो देखा है, अगर आपको एलएल वाली बात समझ में आ रही है तो आप एलएल से कर लीजिए, एलएल रोटेशन परफॉर्म होगा, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ एलएल सिचुएशन। तो ये 39 पर राइट रोटेशन होगा, और जब राइट रोटेशन होगा तो 39 नीचे आएगा और 25 का राइट चाइल्ड बन जाएगा। केवल इतने पार्ट पे फोकस करिए आप, जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है रेड बॉक्स में। और ये जब 39 नीचे आएगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे 25 का और ये ब्रेक हो गया। अब सिंपली इस असेंबली को उठाकर आपको यहाँ 48 में अटैच कर देना है। ये अटैचमेंट के बाद आप सबके बैलेंस फैक्टर लिखिए। देखिए सब नोट के बैलेंस फैक्टर 0 ही आएंगे। 25 का 2 - 2 0, 48 का 3 - 3 0, यानी कि ये बैलेंस ट्री हमें मिल गया। नाउ वी कैन इंसर्ट इन न्यू की 59 टू दिस बैलेंस ट्री। तो ये हमारा बैलेंस ट्री रहा। अब इसमें 59 अटैच करना है। 59 इज ग्रेटर देन 48, लेस देन 56, बट sorry 59 is greater than 48, less than 60 and greater than 56. So it will attach to the right of the 56. When 59 is attached, balance factor changes. Now write the new balance factor adjacent to every node, and we notice that there is no any balance factor which is which needs any rotation or any rebalancing, means everything is fine. So we can attach the new key 57 to it.
57 is greater than 48, less than 56, greater than 48, less than 60, greater than 56, but less than 59. So it will attach to the left of a node 59. जब ये अटैच होगा फिर सबके बैलेंस फैक्टर चेंज होंगे. जैसे 56 का देखिए बैलेंस फैक्टर क्या होगा, राइट लेफ्ट हाइट इसकी 1 है और राइट हाइट है 1 2 3, तो 1 - 3 - 2. 60 का बैलेंस फैक्टर देखिए, 60 की लेफ्ट हाइट है. लेफ्ट हाइट मीन्स आपको लेफ्ट सब ट्री उस नोड को काउंट करते हुए पूरा लेफ्ट सब ट्री के नोड को काउंट करने हैं. जैसे 1 2 3 4 आ गए. और राइट हाइट 60 की होगी 1 और 2, तो 4 - 2 + 2. सिमिलरली 48 का आप देखिए, इसकी लेफ्ट हाइट क्या है. दो तरीके से आप लीफ नोड पे पहुंच सकते हैं, 1 2 3 and 1 2 3, both length is 3, therefore left height is 3. Now the right height 1 2 3 and 1 2 3 4 5, तो 5 and 3 में 5 मैक्सिमम है, मींस राइट हाइट हो गई हमारी 5, 1 2 3 4 5, और लेफ्ट हाइट हो गई 1 2 3, तो 3 - 5 - 2. तो 57 के इंसर्शन के बाद हम देख रहे हैं यहां पर भी गड़बड़ है, 56 पर भी, 60 पर भी और 48 पर भी. अब हमें कैसे सॉल्व करना है इसको, फिर मैं आपको वही मेथड बता रहा हूं. आप देखिए जो न्यूली की आपने इंसर्ट की है वो 57 है, वो जिस पर अटैच हुई है यानी कि वो अपने पेरेंट के लेफ्ट में अटैच हुई है और उसका पेरेंट खुद 56 के राइट में अटैच है. तो ये केस हो गया हमारा लेफ्ट ऑफ राइट, मींस आप जिसके लेफ्ट में अटैच हुए वो खुद 56 के यानी कि जिस नोट पर गड़बड़ी मिली है उसके राइट में अटैच है. तो यहाँ पर RL रोटेशन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि पहले राइट रोटेशन फिर लेफ्ट रोटेशन. और दूसरा मेथड जो मैंने आपको इजी वाला बताया था, एक शॉर्टकट मेथड बताया था, उसके थ्रू भी आप इजिली गेस कर सकते हो. जैसे कि आपने देखा पहली गड़बड़ यहाँ देखिए, गड़बड़ यहाँ भी हो रही है 48 पर भी, 60 पर भी और 56 पर भी. लेकिन हमारा रूल क्या है कि हम डीपेस्ट लेवल को पहले सॉल्व करते हैं. तो लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2, तीनों लेवल पर गड़बड़ है, तो सबसे पहले लेवल 2 को सॉल्व करेंगे. अब लेवल 2 जो है उसका बैलेंस फैक्टर -2 है और वो उसका जो चाइल्ड नोड है उसका बैलेंस फैक्टर +1 है, यानी साइन डिफरेंट है. डी फॉर डिफरेंट एंड डी फॉर डबल. तो डिफरेंट साइन देख के आप इजिली गेस कर सकते हो कि यहाँ डबल रोटेशन लगेगा. अब जो पॉजिटिव है, डबल रोटेशन का मतलब दो रोटेशन होने हैं, तो जहां पॉजिटिव है वहां आप राइट रोटेशन देंगे, पॉजिटिव मींस राइट रोटेशन, और जो निगेटिव है उस पर लेफ्ट रोटेशन. या RL रोटेशन आप समझना चाहें तो RL रोटेशन का भी मीनिंग यही होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट रोटेशन एंड देन लेफ्ट रोटेशन. तो जो राइट रोटेशन होगा डीपेस्ट लेवल पे होगा यानी 59 पर होगा, और जो लेफ्ट रोटेशन होगा वो 56 पर होगा. तो इसको समझ लेते हैं कैसे होगा. RL रोटेशन की रिक्वायरमेंट होगी रीबैलेंसिंग के लिए, और आप देखिए पहले 59 को राइट रोटेट करेंगे, तो अगर 59 को राइट रोटेट करेंगे तो 57 के राइट में आ जाएगा. उसके बाद जो भी होगा उसमें 56 को लेफ्ट करेंगे, तो पहले राइट रोटेशन कर लेते हैं, फिर जो एक हमें रिजल्टेंट ट्री यानी इंटरमीडिएट ट्री मिलेगा उसमें हम 56 को लेफ्ट रोटेट करेंगे. तो इसको मैंने अलग से एक स्लाइड पे स्पेशली इसको समझाया अलग से आपको. देखिए पहले राइट रोटेशन देखते हैं कि 59 पे जब राइट रोटेशन होगा तो एक्चुअली होगा क्या. जब 59 पे राइट रोटेशन हुआ तो 59 नीचे आके 57 के राइट ट्री बन गया. देखिए 59 का राइट ट्री बन गया. अब ये चीज हो गई. अब आपको यहाँ पर लेफ्ट रोटेशन देना है 56 पर. तो जब 56 पे लेफ्ट रोटेशन देंगे देन इट विल बिकम द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 57. ये नीचे आएगा और यहाँ अटैच हो जाएगा, मींस 57 के लेफ्ट में अटैच हो जाएगा. तो आपको ये देखिए ये था और ये मिल गया. जब ये 56 नीचे आएगा तो 57 के लेफ्ट में अटैच हो गया, तो कुछ ऐसा मिला. ये यहाँ से चूंकि नीचे आएगा तो मीन्स ये लिंक ब्रेक हो गया, इसीलिए इसको खाली दिखाया है. इसको विजुअलाइज करना है, आप डायरेक्टली बनाएंगे, मैंने समझाने के लिए इसको अलग अलग बनाया, एग्जाम में आपको अलग से नहीं बनाना है. अब आपको ये चीजें आपको बैकग्राउंड में एज्यूम करनी है कि ऐसा कुछ हुआ है. उसके बाद फिर इस पूरी असेंबली को, ये जो ब्लू कलर में जो बॉक्स में 3 नोड है इनको उठा करके हम 60 पर अटैच कर देंगे, तो ये जाके ऐसे अटैच हो गया. यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये ऐसा आ गया. अब इसके बाद अटैच करने के बाद आप बैलेंस फैक्टर लिखिए, क्योंकि दो रोटेशन की रिक्वायरमेंट थी, राइट एंड लेफ्ट, एंड बोथ रोटेशंस आर नाउ परफॉर्म्ड. So you can, this is the final tree, and here you have to write the balance factor of every node. When we write the balance factor, we see that the balance factor of every node is within the allowed limit, means there is no problem and the tree is balanced. means 57 के बाद जो प्रॉब्लम हुई थी उसको आपने RL रोटेशन परफॉर्म किया तो आपको ये ट्री मिल गया और ये बैलेंस ट्री है. अब बिकॉज ये ट्री बैलेंस्ड है, therefore you can now attach the new key 55 to this balance tree.
अब ये 55 अटैच करेंगे तो 55 इज ग्रेटर देन 48, it is less than 60, it is less than 57, and it is also less than 56. Therefore 55 will attach to the left of node 56. यहाँ पर अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद आप सबके बैलेंस फैक्टर लिखिए। बैलेंस फैक्टर लिखने का मैंने बता दिया, जिस नोड का बैलेंस फैक्टर लिखना हो उसकी लेफ्ट हाइट कैलकुलेट करिए। लेफ्ट हाइट मींस उस नोड को लेते हुए लीफ तक आ जाइए। तो जितने में जैसे 60 का बैलेंस फैक्टर लिखना है तो 60 से लेफ्ट साइड में लेफ्ट सब ट्री देखिए इसका, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 दो तरीके से आप लीफ पे आ सकते हो। एक तरफ 4 मिल रहा है, एक तरफ 3 मिल रहा है, तो 4 और 3 में मैक्सिमम क्या हुआ 4, मींस 60 की जो लेफ्ट हाइट हो गई 4 हो गई और 60 की राइट हाइट क्या हो गई 1 एंड 2, तो 4 माइनस 2 तो प्लस 2 आ गया। सिमिलरली आप 48 का लिखो, 48 की लेफ्ट हाइट क्या है 1 2 3, 1 2 3, तो 3 है 3 का मैक्सिमम 3, यानी कि 48 की लेफ्ट हाइट हो गई 3। अब 48 की राइट हाइट लिखेंगे तो राइट सब ट्री में जितना जहां जहां लीफ, तो तीन तरीके से लीफ पे पहुंच सकते हैं आप, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4, तो 3 4 और 5 में मैक्सिमम हो गया 5, तो लेफ्ट हाइट 3, राइट हाइट 5, तो 3 माइनस 5 माइनस 2। जितने लीफ नोड होंगे उनको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, उनका बैलेंस फैक्टर 0 ही होगा। और बाकी जैसे 57 का आपने देखा 1 2 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 मीन्स +1, जहां 1 आए वहां +1 लिखिए, मीन्स जो पॉजिटिव वैल्यूज हो उसके आगे प्लस लगाइए और जो नेगेटिव है वहां तो आप लगाते ही हो। तो ये आपका 55 अटैच होने के बाद हमने देखा कि दो नोड ऐसे हैं जहां पर गड़बड़ हो रही है। अब आप देखिए कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से रोटेशन की रिक्वायरमेंट है, ये कौन सा केस है, ये LR केस है या RL केस है या LL है या RR है। तो आपको यहाँ देख के लग रहा है कि ये हमारा कौन सा केस है, ये गड़बड़ यहाँ भी हो रही है यहाँ भी हो रही है। तो ये लेवल 0 पे भी प्रॉब्लम है, लेवल 1 पे भी प्रॉब्लम है, तो डीपेस्ट लेवल कौन सा हुआ जहां प्रॉब्लम है वो है लेवल 1, यानी कि इसकी प्रॉब्लम को हम रेक्टिफाई करेंगे। तो आप देखिए जो अभी रिसेंटली नोट 55 अटैच हुआ है, हमने देखा था LL केस, आप याद करिए लास्ट वीडियो आपने देखा होगा ध्यान से, उसमें आपने देखा था जिसमें मैंने एवियल ट्री का रोटेशन बताया है कि अगर LL रोटेशन तब होता है इफ द न्यूली इंसर्टेड की इज इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द नोड N। तो यहाँ पर N वाली जो नोड है वो है 60, जहाँ N मीन्स जहाँ गड़बड़ हो रही है ये। तो हमारे जो 50 है 55 है वो इसके लेफ्ट के लेफ्ट में, मीन्स ये LL केस हो गया है। LL केस मीन्स केवल हमें राइट रोटेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि LL और RR रोटेशन वो सिंगल रोटेशन के केस है, जबकि RL और LR वो डबल रोटेशन के केस है। तो चूंकि ये LL का केस है तो यहाँ पर एक सिंगल रोटेशन होगा। अच्छा, दूसरा जो मैंने शॉर्टकट मेथड बताया आपको उसके थ्रू भी आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि जहां पर पहली गड़बड़ हुई डीपेस्ट लेवल पे, या आप बॉटम से चलो जहां पर पहली गड़बड़ हुई, या ऊपर से चलो तो डीपेस्ट लेवल को देखो, ये आ गया +2। और ये इसका जो चाइल्ड नोड है एक तो 0 है, इसको जाने दीजिए, उसका तो कोई साइन है नहीं। जो लेफ्ट नोड है इसका, जो लेफ्ट चाइल्ड नोड है उसका बैलेंस फैक्टर है +1, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और सेम साइन मीन सिंगल रोटेशन। और पॉजिटिव बता रहा है कि ये राइट रोटेशन होगा, मीन्स आपको केवल 60 पर राइट रोटेशन दे देना है। तो ये हो गया, देखिए LL केस बताया था उसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं, इसीलिए इसको हाईलाइट कर दिया कि ये लेफ्ट ऑफ लेफ्ट है। या फिर आप जो वही मैंने तरीका शॉर्टकट बताया उससे आप देखो तो यहाँ पर 60 पर एक राइट रोटेशन की रिक्वायरमेंट है। तो जब 60 पर राइट रोटेशन होगा तो ये पूरी असेंबली, चूंकि 60 के साथ ही 65 अटैच है, तो जब 60 नीचे आएगा तो 65 ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ये लेफ्ट आएगा तो यहाँ पर ऑलरेडी एक नोट 59 है, तो इसको पहले हटाना होगा। ये ऑलरेडी मैं आपको प्रोसीजर रोटेशन में समझा चुका हूँ, उसी का रिपीटिशन हो रहा है। तो 59 को आप यहाँ से डिटैच कर लीजिए, तो 59 हट गया। ये देखो इसको यहाँ पर मैंने आपको ढंग से समझाया है, बिल्कुल ब्रेक करके समझाया है। 59 को पहले हटाना पड़ेगा, तभी वो 60 और 65 वाली असेंबली नीचे आ पाएगी। तो 65 हटा लिया हमने। अब 60 और 65 यानी कि 60 को नीचे लाएंगे तो 65 ऑटोमेटिक नीचे आ गया, देखिए रोटेट होके आ गया, दोबारा देखिए ऊपर था और ये नीचे आ गया। अब जो नोट नीचे आया है उसकी जो आर्म फ्री हो उसी पर इस डिटैच नोट को यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो 60 का लेफ्ट आर्म जो है फ्री थी, तो इसको यहाँ पर अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद ये चीज आ गई, और अब आप देखिए ये पूरी असेंबली को आपको यहाँ अटैच कर देना है। ये पूरी असेंबली जो ये वाली है 57, 56, 55, 59, 65, ये पूरी असेंबली को आपको यहाँ पर अटैच कर देना है। तो यहाँ पर जब आप अटैच करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। इसको आपको विजुलाइज करना है कि कुछ ऐसा ही बैकग्राउंड में हो, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना तोड़ के नहीं लिखना है, या कहीं आपको डायरेक्ट फाइनल आंसर ऐसे ही लिखना है। तो LL रोटेशन होने के बाद में ये फाइनल आ गया। अब जब ये आया, इसके हमने सारे बैलेंस फैक्टर लिखे,
तो बैलेंस फैक्टर लिखने के बाद हमें लगा कि जितने भी बैलेंस फैक्टर हैं all are within the allowed limit, means we have got the balanced tree because all the keys are exhausted, means we have obtained our final tree. So this is the AVL tree which is generated after insertion of all the given keys. Now we come to the deletion part. We have learnt the insertion part. Now we come to the deletion part. और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो BST का आपने डिलीशन पढ़ा था, BST के वीडियो में मैंने आपको डिलीशन पढ़ा रखा है ऑलरेडी। तो चूंकि AVL ट्री भी एक हाइट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री होता है, तो जो डिलीशन के रूल्स बाइनरी सर्च ट्री के थे वही यहाँ भी वर्क करेंगे, सेम रूल्स हैं। बस यहाँ पर आपको बैलेंस फैक्टर का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि BST में बैलेंस फैक्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जो भी रूल होता था उसके अकॉर्डिंग हम कीज को डिलीट कर देते थे सिंपली। लेकिन यहाँ पर उन रूल को फॉलो करते हुए, रूल्स को फॉलो करते हुए आपको डिलीट भी करना है। और आपको मालूम है कि जब भी इंसर्शन या डिलीशन होता है तो AVL ट्री के डिफरेंट नोड्स के बैलेंस फैक्टर चेंज होते हैं या होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी आप डिलीट करें या जब भी इंसर्ट करें तो एक बार से नया बैलेंस फैक्टर सब नोड का चेक कर लें, और जिन जिन नोड पे प्रॉब्लम है उनको रोटेशन की हेल्प से रीबैलेंस कर लें। यही सिंपल रूल है। तो ये BST का आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो पहले वो वीडियो देखिए जिससे आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम डिलीशन समझते हैं। जैसे इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया कि वी हैव टू डिलीट ए की 25 एंड देन 39 फ्रॉम द फॉलोइंग AVL ट्री, मींस ये जो AVL ट्री गिवन है इसी में से 25 डिलीट करिए, जो रिजल्टेंट ट्री मिला उसी में से 39 डिलीट करना है। इसकी दो तरह की प्रॉब्लम आती है, एक तो हो गया कि 25 डिलीट करिए फिर सेम ट्री से ही 39 डिलीट करिए। लेकिन यहाँ मैं क्या चाह रहा हूँ या क्वेश्चन क्या चाह रहा है कि यू हैव टू डिलीट 25, देन व्हाट एवर यू ऑब्टेन from that tree you have to delete 39. So let us see, delete 25. अब 25 को डिलीट करना है तो वी हैव टू चेक दैट either it is a case 1 or case 2 or case 3. It is a case 3. केस 3 क्या था याद करिए, जब हमें जिस नोड को डिलीट करना हो उसके दो चाइल्ड नोड होते थे तो हम उसको उसके इन ऑर्डर प्रेडिसेसर या इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस करते थे, बिकॉज हियर द 25 is a node which has the two child nodes. Therefore, we have to replace 25 with its in order successor. Since 39 is the in order successor of 25, how 39 is the in order successor? I have already told you, you have to revise that session. So 39 is the in order successor. So replace 25 with the help of 39. Delete कर दिया 39, सॉरी 25 डिलीट कर दिया और 39 ने 25 की स्पेस ले ली, उसको रिप्लेस कर दिया। अब जब ये रिप्लेस होगा तो आप सबके बैलेंस फैक्टर दोबारा लिखिए। तो ये बैलेंस फैक्टर दोबारा लिखा तो हमें लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि अगर हम 25 डिलीट किया तो ये कोई दिक्कत नहीं हुई, सबके बैलेंस फैक्टर विद इन द लिमिट है, नो प्रॉब्लम। अब जो ये ट्री मिला है इसी में से हमें 39 डिलीट करना है। तो 39 जब डिलीट करेंगे तो 39 इज ए केस 2, the deletion of 39 is a case 2 deletion. Case 2 is when we have to you want to delete any node and that node has only one child node, then in that case you have to replace the node with the help of its only child node. Hope you remember the rules. So 39 is the case 2 and 39 has only one child node 18. So you have to just replace 39 with the help of 18. 89 39 को रिप्लेस कर देगा। अब देखिए आपने डिलीशन तो परफॉर्म कर लिया, बट आफ्टर डिलीशन व्हेन यू rewrite the balance factor of each and every node, you have noticed that the balance factor of node 48 is -2, which is not in the allowed limit. Means after deletion of 39, what we have obtained is a unbalanced tree. So it's our responsibility to balance this tree. How we can balance it? It is a case of we have obtained the balance factor -2, means we and the both of its child node have the balance factor 0, means we have to just perform a left rotation because it is negative. In case of negative, we have to perform a right rotation because
both of its children have the balance factor 0. So just left rotate. तो जब आप इसको लेफ्ट रोटेट करेंगे तो देखिए जब ये लेफ्ट रोटेट होगा नीचे आएगा तो ये हमारे पास ये प्रॉब्लम करेगा क्योंकि ऑलरेडी 57 के लेफ्ट चाइल्ड बनाते, लेकिन 57 के लेफ्ट में ऑलरेडी ये नोड लगे हुए हैं, तो पहले इनको डिटैच करना होगा। तो इन नोड को हमने डिटैच कर लिया। अब ये स्पेस फ्री हो गया। अब 48 और 18 को नीचे ले आए, क्योंकि 48 नीचे आएगा तो 18 ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। ये देखिए दोबारा से देखिए ये था, और जब रोटेट किया तो ये नीचे आ गया। अब जो नोड नीचे आया है उसी की जो आर्म फ्री होगी उसी पर ये 56 और 55 जिसको हमने डिटैच किया था इसको जाके अटैच कर देंगे। तो हमने देखा 48 की राइट आर्म फ्री है, तो इसके राइट आर्म पर ये अटैच हो जाएगा। तो जब ये अटैच होगा उसके बाद आप सबका बैलेंस फैक्टर लिख लीजिए। तो आप नोटिस करेंगे कि नाउ द बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नोड इज विद इन द allowed limit, means we have obtained the balance tree. Now we have to take a next question, in which we have to delete the key 65 from the following Abel tree. Because 65 has no child node, so it is a case 1. Case 1 is the simplest case of deletion of in the BST, where we have to delete the leaf node. Because leaf node has no child node, therefore just delete the node. There is no further requirement. So just delete the 65. But after deletion of 65, we have noticed that the balance factor of the root node 59 is in out of the allowed limit, +2, because both of its children have the balance factor 0, means we have to perform a right rotation, because the balance factor of 59 is +2, plus means right rotation. So ये अनबैलेंस्ड ही है, इसको राइट रोटेट करना। वही सेम प्रॉब्लम जैसे पिछले में लेफ्ट रोटेट करते समय प्रॉब्लम आई थी, वही प्रॉब्लम यहाँ पर राइट रोटेट करने में आएगी। जब 59 नीचे आएगा तो 48 का राइट चाइल्ड बनेगा, लेकिन 48 के राइट में ऑलरेडी कुछ नोड अटैच है, तो ये इस पूरे सब ट्री को पहले डिटैच करना पड़ेगा। तो देखिए हमने इसको डिटैच कर लिया। नाउ वी मूव नाउ वी परफॉर्म ए राइट रोटेशन एट 59। तो 59 नीचे आ गया, दोबारा से देखिए ये था, ये आ गया। अब 59 की जो आर्म फ्री है, जो नोड नीचे है उसकी जो आर्म फ्री है उस पर इसको अटैच कर देंगे। तो ये यहाँ इस पूरी असेंबली को लाके यहाँ अटैच कर देंगे, तो ऐसे अटैच हो जाएगा। नाउ अगेन राइट द बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नोड। वी हैव नोटिस दैट the balance factor of every node is within the allowed limit, means we have obtained a balanced tree. So this is the final answer after deletion of 65. BST में हम सिंपली डिलीट कर देते थे, लेकिन AVL ट्री में उसी रूल से पहले डिलीट करेंगे फिर बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। अगर हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर -1, +1 या 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वही फाइनल आंसर होगा। और अगर नहीं है तो हमें उसको प्रॉपर रोटेशन परफॉर्म करके उसको रीबैलेंस करना होगा। यही सिंपल रूल है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 3। डिलीट द की 80 फ्रॉम द फॉलोइंग एबल ट्री। अब देखिए इसमें भी 80 को डिलीट करना है। अब 80 जब डिलीट होगा तो 80 इज द सिंपलेस्ट केस, बिकॉज 80 हैज नो चाइल्ड नोड, सो सिंपली 80 डिलीट हो जाएगा। तो 80 को डिलीट कर दिया। लेकिन जब 80 डिलीट होगा, देखिए आप 80 जब डिलीट करेंगे और दोबारा से सबके बैलेंस फैक्टर लिखेंगे तो 65 जो रूट नोड है उसका बैलेंस फैक्टर +2 हो जा रहा है। +2 इज नॉट अलाउड, देयरफॉर यू हैव टू परफॉर्म द प्रॉपर रोटेशन। अब कौन सा रोटेशन परफॉर्म करेंगे? अब देखिए 65 के राइट में तो 0 है, लेकिन लेफ्ट में क्या है? जो इसका लेफ्ट चाइल्ड नोड है उसका बैलेंस फैक्टर -1 है। साइंस आर डिफरेंट, मींस डबल रोटेशन, डी फॉर डिफरेंट, डी फॉर डबल रोटेशन। बिल्कुल सिंपलेस्ट टूल आपको बताया है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। अब ये डबल रोटेशन में कहा, जो जहां नेगेटिव है वहां लेफ्ट रोटेशन, और जहां पॉजिटिव है वहां राइट रोटेशन। लेकिन इन दोनों में लेफ्ट और राइट में भी पहले कौन सा होगा? पहले डीपेस्ट लेवल पे परफॉर्म करेंगे, मींस लेफ्ट रोटेशन करेंगे फिर राइट रोटेशन करेंगे। यानी कि ये LR रोटेशन का केस हो गया, इट रिक्वायर्स LR रोटेशन। तो इसको देखिए आप पहले लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे फिर राइट। तो जब लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो ये 48 और 29 यहाँ आएगा, 56 का लेफ्ट नोड बनेगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक नोड है तो पहले इसको डिटैच करना पड़ेगा। इसको हटा लिया, फिर उसको नीचे ले आए, दोबारा से देखिए ये 48 जब नीचे आएगा तो यहाँ आ गया। अब इस 49 को यहाँ की जो इसकी 48 की राइट आर्म फ्री थी वहां अटैच कर दिया, दोबारा से देखिए ये था, ये हुआ, 49 को यहाँ अटैच कर दिया। अब इस पूरी असेंबली को यहाँ ले जाके अटैच कर देंगे, तो ये लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म हो गया। लेकिन ये जो ट्री अभी हमें मिला है ये इंटरमीडिएट ट्री है, इट इज नॉट द फाइनल ट्री। फाइनल ट्री कब मिलेगा? जब हम
राइट रोटेशन भी परफॉर्म कर देंगे, बिकॉज इट इज ए केस ऑफ LR रोटेशन। तो लेफ्ट रोटेशन हो चुका, अब राइट रोटेशन और करना है। राइट रोटेशन कहाँ करना है? जहाँ का बैलेंस फैक्टर पॉजिटिव था 65 पे। तो जब 65 को रोटेट करके नीचे लाएंगे तो यहाँ पर भी उसी तरह की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक नोड अटैच है, तो पहले 58 को डिटैच करना पड़ेगा, फिर 65 को नीचे ले आएंगे, और अब 65 की लेफ्ट आर्म फ्री है तो उस पर इसको अटैच कर देंगे। तो ये हमारा हो गया बैलेंस ट्री। जब इसका आपने सारे का बैलेंस फैक्टर लिखा तो आप देखिए, you have got every tree, every node has the proper balance factor. Every node is properly balanced because the balance factor of each and every node is 0. So this is all about the uh, creation and deletion of the in the AVL tree. So thank you for watching. Kindly like, subscribe, comment on my channel Easy Learning with Krishna. And you can also write me your feedback on the kbdedu channel @gmail.com. So thank you for watching. Thank you.